Hello students, Assalamu alaikum and good afternoon. This is Arif Iqbal Ansari, your physics teacher in the lab. Well, how are you students? Hope you all are fine. And today I will start my new class with you. You are my new students and I welcome you in Wells College lab. But I'll start the class very conventionally as I do every year. First of all, I'll introduce myself. Then afterwards, you will be introducing. Okay, I'll be asking, if time allows me, then I'll be asking some, I'll contact some students and ask about their introduction. Okay. And afterwards, when you come to the lab, inshallah, from next week, then we know each other very well. Okay. So this is the start of the new session, new class. And let's give me my introduction. My name is Arif Iqbal Ansari. And I am MSc Physics. And I did that in 1994, back in 1994. Private school teacher in different institution as physics maths teacher. And after that, I was selected as a physics lecturer in Pakistan Air Force College. And I worked there for some time. After resigning from Pakistan Air Force, I joined City School PF chapter. And I worked there for 7 continuous years as O-level physics teacher. After that, I became a part-time A-level teacher in 2006, 2005 rather. I joined Beacon House School, Jubilee campus as A-level part-time teacher. And with that job, I worked in some other school as well. But in Beacon House, Jubilee campus, I worked for 8 continuous years as physics, A-level physics part-time teacher. And currently, I'm teaching in different institutions. First of all, which is very important to mention, that I am not a lab teacher only. I am a theory teacher, but I am doing my lab classes here in Wells College. So currently, I am involved in labs, and you will be benefited because you will be doing practicals with a teacher who is not only lab teacher but a full-fledged theory teacher. So I can help you in theory as well if you want to, and I am also a physics practical exam supervisor from British Council for last 16 years. So it's a very vast experience behind me. Currently, I am teaching in St. Michael's School, in Wells College, in Bahria College, in Hexis College, and in Eden College. तो ये मेरी जो है वो एफिलिएशन बेटा मॉर्निंग में सही है। तो यहाँ मुख्तलिफ जगहों पे मैं पढ़ाता हूँ और इसके अलावा MSc के साथ साथ PGCC है ना, एक जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का कोर्स होता है बेटा टीचिंग का ना, पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट इन टीचिंग होता है बेटा, वो उसको जो है वो मैंने किया हुआ है। तो ये सब बातें बताने का मकसद बेटा आपको एक कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करना है कि जिस टीचर से आप पढ़ रहे हो बेटा उसकी क्या क्वालिफिकेशन है और क्या एक्सपीरियंस है, कहाँ कहाँ वो पढ़ाता है, और सिर्फ लैब टीचर नहीं बल्कि एक फुल फ्लैश थ्योरी टीचर है। सही है। अच्छा बेटा, रिजल्ट बेहतरीन रहे हमारे, रिकॉर्ड A ग्रेड जो है वो लैब में दिए हैं मैंने। लैब में P3 में बेटा A ग्रेड स्कोर करना निस्बतन ज़रा मुश्किल होता है, क्योंकि यहाँ पर बेटा आपको परफॉर्मेंस करनी है। प्रैक्टिकल ATP नहीं है बेटा, जैसे O लेवल में होता था। तो O लेवल में तो ATP सबसे आसान पेपर होता है ना, लेकिन AS लेवल में बेटा यहाँ पर जो है ये P3 जो है ये प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस बेस्ड होता है, एग्जाम होता है। तो परफॉर्मेंस करनी होगी आपको,
वो इट इज ऑलवेज डिफिकल्ट टू परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट एज एज एन एग्जाम। सही है, तो उसको जो है बेटा हम यहाँ पर देखते हैं, बच्चों को सिखाते हैं, बहुत अच्छी तरह सिखाते हैं। जो प्रैक्टिकल बुकलेट है वो मैंने बनाई हुई है, यहाँ पर जो चल रही है, मैं भी जो चला रहा हूँ, दूसरे टीचर जो चला रहे हैं वो आप ही के टीचर की बनाई हुई है। और इसके अलावा जो है वो हम बच्चों को ऐसे ट्रेन करते हैं बेटा कि वो अगर ज़रा सी भी मेहनत करते हैं तो बहुत अच्छा ग्रेड स्कोर कर लेते हैं। ठीक है ना। अच्छा, इसके अलावा बेटा मैं सब बच्चों की बुकलेट जो है उसमें एक एक प्रैक्टिकल मैं चेक करता हूँ, मेरी आदत है। और हर प्रैक्टिकल में उनकी मिस्टेक्स को जो है वो पॉइंट आउट करता हूँ। उससे बच्चे भी अल्टीमेटली इस काबिल हो जाते हैं कि कुछ अर्से बाद ही खुद ही प्रैक्टिकल करने के काबिल होते हैं, है ना। हम उनको मॉनिटर करते हैं। सही है, तो ये सारी बातें। अब मैं बेटा कुछ बातें जो है वो आपसे पूछना चाहूंगा, है ना। रैंडमली पूछ रहा हूँ क्योंकि बेटा ठीक से इंशाल्लाह फिजिकल क्लासेस होंगी, तो रैंडमली अभी पूछ लेते हैं कुछ बच्चों से, फिर बाकी जो है वो बाद में पूछ लेंगे। ठीक है, तो बेटा कोई माइंड नहीं करना अगर किसी से नहीं पूछा, क्योंकि टाइम नहीं है ना बेटा, टाइम, ये क्लास छोटी है ना, तकरीबन जो है वो 1 घंटे की क्लास है। तो उसमें बेटा हम कुछ बातें भी करना चाहते हैं और बाद में जो है वो इंट्रोडक्शन के साथ बातें भी करना चाहते हैं कुछ। ये क्लास सबसे पहले बेटा हम बात करेंगे अमीर मूसा तारिक से। अमीर मूसा बेटा, नाम तो आपका पता चल गया, आप मुझे बताएंगे कि आपका प्रीवियस स्कूल या कॉलेज कौन सा था। सही है ना। और आपका फिजिक्स में क्या ग्रेड आता है, क्या ग्रेड आया था इंटरनल एग्जाम में, और आप फिजिक्स को कैसा समझते हैं, डू यू लाइक इट और यू आर जस्ट स्टडीइंग इट बाय कंपल्जन because it is the need of the combination that you have opted for. Okay, चलो अमीर मूसा बोल बेटा, ओपन योर माइक। अस्सलाम वालेकुम सर। आई एम वालेकुम फ्रॉम बहार सलाम। हसन स्कूल सिस्टम। ओके। और सर वो मेरा ग्रेड अभी तक आया नहीं है, लेकिन मेरा हाँ मॉक में मॉक ए टेस्ट। आया था अच्छा शाबाश, गुड। फिजिक्स में। और फिजिक्स मुझे थोड़ी सी अच्छी लगती है। थोड़ी सी अच्छी लगती है, चलो फिर ज्यादा अच्छी करवाएंगे ना यार, ये क्या बात हुई, कोई बात नहीं। आमिना, आमना बेटा, ओपन योर माइक। Yes, I'm from Beacon Light Academy ओके। and I got my IGCSE results in August. तो So I got an इंटरनल एग्जाम में क्या ग्रेड आते हैं बेटा? इंटरनल एग्जाम का तो मुझे याद नहीं है, लेकिन हमारे IGCSE हुए थे तो उसका रिजल्ट आ गया है, क्या है आपका? A स्टार आया। अच्छा माशाल्लाह, वेरी गुड। फिजिक्स ऐसी लगती है तुम्हें, अच्छी लगती हुई यकीनन। जी। चलो सही। चलो आगे करते हैं बात बेटा। हम बात कर रहे हैं बिनते अजीज। अस्सलाम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा नाम फातिमा अजीज है और मैं मॉन्टेसरी कॉम्प्लेक्स कैम्ब्रिज स्कूल से हूँ। अभी ओके। मिनी सीरीज में मैंने अपने फिजिक्स का पेपर दिया था और अभी रिजल्ट आना रहता है और अच्छा, मॉक्स में मेरा ए स्टार आया था फिजिक्स में। वेरी गुड वेरी गुड। सही, और फिजिक्स अच्छी भी लगती है तुम्हें? ठीक है, मैं अपनी तरफ से बोल देता हूँ। जी फिजिक्स अच्छी लगती है, पर्टिकुलरली न्यूक्लियर फिजिक्स मेरा अच्छा इंटरेस्ट उसकी तरफ ज़्यादा है। अच्छा गुड। अच्छा, नौरीन सिद्दीकी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। मैंने मोंटेसरी कॉम्प्लेक्स कैम्ब्रिज स्कूल से किया है वो लेवल्स, अच्छा और अच्छा अभी पेपर्स दिए तो रिजल्ट तो नहीं आया, लेकिन मॉक में मेरा अभी ए आया था। अच्छा, आपका नाम क्या है? नौरीन सिद्दीकी, लाइबा सिद्दीकी, क्या है? लाइबा लाइबा। लाइबा, सर वो अच्छा अच्छा। दूसरे अकाउंट से है ना, या इस अकाउंट से डाला था तो वो यही हाँ आता सही है सही फिर। सही, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बेटा, ठीक है, गुड। अच्छा, सादिक अमीन, बड़ा प्यारा नाम है भाई, सादिक और अमीन है। सादिक अमीन, ओपन योर माइक। अच्छा, सादिक अमीन का माइक शायद नहीं काम कर रहा। समीता,
Assalamu alaikum, sir. I'm from Waalaikum salam. WCHS Public School, and Okay. I have given my physics paper in this July series, and Okay. I like physics. Like it's ग्रेड quite interesting subject. अच्छा ग्रेड क्या आता है बेटा? In mocks, I got A. गुड, शाबाश, सही। अच्छा फिर सैयदा फाइला बतूल रिजवी। Assalamu alaikum, sir. वालेकुम सलाम। Sir, I'm from Al-Hadi Academy ओके और रिजल्ट तो अभी तक आया नहीं है। बाकी फिजिक्स में मॉक्स में भी आया था। ओके। अच्छा फिजिक्स कैसी लगती है बेटा? नहीं, इतना कुछ खास इंटरेस्ट नहीं है। ओह अच्छा अच्छा, चलो कोई बात नहीं। सैयद आरेजुल हसन। आरेस, आरेस का माइक नहीं खुला हो शायद। सैयदा फाइला बतूल। सर मैंने अभी तो बताया है। आपने बताया? अच्छा सर। अच्छा ये है अपना मोहम्मद आरिफ। मोहम्मद आरिफ। आरिफ है, आरिफ है। मोहम्मद आरिफ, मोहम्मद एहसन। Assalamu alaikum, sir. Sir, I am from Harry Palace schools. अभी तो अभी जो मैंने पेपर दिए थे उसका तो बाकी है, लेकिन मॉक्स में ए स्टार बनता था मेरा अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी फिजिक्स का जहाँ तक दूसरे जो फील्ड्स है फिजिक्स के। अच्छा सही, सही बेटा, गुड। अच्छा अब बात करते हैं सादिया खान। Assalamualaikum, sir. वालेकुम सलाम। Sir, I'm from Mahaji Science और Okay. मैंने मेरी स्कूल में पेपर दिया था फिजिक्स का, तो अभी तक ग्रेड नहीं आया और मेरा मॉक्स में ये आया था फिजिक्स। अच्छा शाबाश, गुड। अच्छा बेटा, तो ये जो है वो बात हमने कुछ स्टूडेंट से की बेटा, बाकी स्टूडेंट से हम बाद में बात करेंगे ना, टाइम इतना नहीं है। तो ओवरऑल मैंने एक आइडिया ले लिया कि बहरहाल क्लास जो है वो अच्छी है, ग्रेड वाइज बड़ी अच्छी क्लास है, अच्छे बच्चे लग रहे हैं मुझे, इसका मतलब मज़ा आएगा काम करने में ना आपके साथ, गुड। अच्छा बेटा, अब हम जो है वो अपना काम शुरू करते हैं, सही है। सबसे पहले बात करते हैं बेटा फिजिक्स। ये है बेटा एएस फिजिक्स, और फिर यहाँ हमने बेटा एक पेज दिया असेसमेंट का। ये स्कीम ऑफ असेसमेंट जो है उससे रिलेटेड है, सही है। यानी बेटा किस बेटा इस एस लेवल का या ए लेवल का फिजिक्स का कोड है बेटा 9702। 2 साल होते हैं, एक एस लेवल एक ए लेवल या A2 लेवल, सही है। 9702/123 123 का मतलब है पेपर 1 होगा, पेपर 2 होगा, पेपर 3 होगा, और इसके वेरिएंट्स होते हैं बेटा। तो वेरिएंट्स पेपर 1 के 11 12 और 13 होते हैं, इसी तरह 2 के 21 22 23 होते हैं, इसी तरह 3 के बेटा 3 के जो है वो ज़्यादा वेरिएंट है, 31 32 33 34 35, बाज़ मरतबा 36 भी होता है, सही है। तो इसमें से ये वाले जो वेरिएंट है वो हमारे रीजन के हैं, पाकिस्तान में बेटा 33 और 34 का पेपर आता है। तो 33 या 34 कोई भी आप ऑप्ट करेंगे, आपको ऑप्शन देगा कॉलेज, या कॉलेज जो है वो खुद जो है वो ऑप्ट कर सकता है। तो वो देखेगा, भाई आप भी देखेंगे, अगर आपको ऑप्शन देगा कि क्लैशेस के हिसाब से ना, वो आप अपना एक चूज कर देते हैं 33 या 34, सही। यानी पेपर 3 वेरिएंट 3
और पेपर 3 वेरिएंट 4। बेटा दोनों पेपर्स का डिफिकल्टी लेवल वो एक जैसा रखने की कोशिश करते हैं, और लेकिन डिफरेंट डेट्स के ऊपर ये पेपर होते हैं, है ना। एक पेपर और दूसरे पेपर के दरमियान तकरीबन जो है 20 से 25 दिन का जो है वो डिफरेंस होता है। सही है। ठीक है बेटा। अच्छा, इसके अलावा जो पेपर 1 और 2 ये तो आपने थ्योरी में देखा होगा। सही। अच्छा, आपको थ्योरी कौन पढ़ा रहे हैं? सर कमल। सर कमल चाहिए हुसैन। सर का। अच्छा, सर कमर का ग्रुप है। सही, बहुत पुराने दोस्त हैं हमारे। बाहर चलें। तो सर ने मुझसे कहा था, सर वाहिद हुसैन जो है उन्होंने, हमारे जो सर हैं, उन्होंने कहा कि भाई आप ए लेवल फिजिक्स के जो है वो एग्ज़ाम सुपरवाइज़र हैं, तो उन्होंने कहा कि आप हमारे बच्चों को प्रैक्टिकल ज़रूर कराएं। तो इसलिए जो है बेटा मैं यहाँ प्रैक्टिकल कराता हूँ। ठीक है। बाकी किसी भी जगह जो है मैं खाली प्रैक्टिकल नहीं कराता, हर जगह जो है वो थ्योरी पढ़ाता हूँ। ज़्यादातर A2s पढ़ाता हूँ, और एस अगर कहीं पढ़ाता हूँ तो प्रैक्टिकल मैं खुद ही कराता हूँ वहाँ पे, किसी लैब असिस्टेंट से प्रैक्टिकल नहीं करवाता। सही। चलो बेटा, पेपर 1 मल्टीपल चॉइस का है, 1 आवर 15 मिनट्स 40 मार्क्स होते हैं। ये वेटेज लिखी है एएस में और ये ए लेवल में, है ना। 31% वेटेज है एएस में, उसकी आधी यानी 15.5% ए लेवल में यानी A2 में। पेपर 2 बेटा सबसे ज्यादा वेटेज रखता है, 1 आवर 15 मिनट्स का है, 60 मार्क्स होते हैं, 46 वेटेज है ना एएस के अंदर। फिर अपना पेपर यानी पेपर 3 बेटा ये एडवांस प्रैक्टिकल स्किल्स कहलाता है। एडवांस प्रैक्टिकल स्किल्स यानी बेटा ए लेवल्स की प्रैक्टिकल स्किल्स आपके पास होनी चाहिए बिफोर यू अपीयर इन द एग्जाम। सही है। 2 आवर्स ड्यूरेशन है बेटा, ड्यूरेशन सबसे ज्यादा है, लेकिन वेटेज जो है वो सबसे कम है एस में ना 23%। लेकिन बहरहाल ये ग्रेड को अफेक्ट करता है, जिसका जो प्रैक्टिकल का ग्रेड अच्छा होता है तो उसे आसानी होती है अच्छा ग्रेड बनाने में ना। और 40 मार्क्स का पेपर होता है बेटा, और इसमें 2 क्वेश्चंस जो है वो देता है, और इन 2 क्वेश्चंस में बेटा एक क्वेश्चन नंबर 1 और एक क्वेश्चन नंबर 2 दोनों ही 20 मार्क्स के होते हैं, 40 मार्क्स इन टोटल बनते हैं। और इसके अलावा बेटा पेपर क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसमें वो एक लंबा प्रैक्टिकल होता है थोड़ा सा ना, उसमें क्योंकि ग्राफ बनाना होता है, उसमें 6 रीडिंग लेनी होती है कम से कम, है ना। टेबल ऑफ रिजल्ट बनाते हैं, उसमें 6 रीडिंग्स होनी चाहिए, और फिर बेटा उसका ग्राफ प्लॉट करते हैं, ग्राफ को एनालाइज करते हैं, एनालाइज करने के बाद रिजल्ट बनाते हैं। तो ये एक थोड़ा लंबा, इसमें टाइम ज़्यादा लगता है ना। और दूसरा प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 2 वो बेटा एरर्स का प्रैक्टिकल है, अनसर्टेनिटीज से रिलेटेड प्रैक्टिकल होता है। उसमें आपने सिर्फ 2 ही रीडिंग लेनी होती है, ग्राफ प्लॉट नहीं करना होता। और फिर वहाँ पे आपने 2 चीज़ों के दरमियान रिलेशंस को, जो भी रिलेशन दिया होगा उसको जस्टिफाई करना होता है। बाज जो है वो बच्चे जस्टिफाई कर लेते हैं, बाज नहीं कर पाते। मतलब अगर वो नहीं भी कर पाते तो मतलब ये नहीं कि उनका प्रैक्टिकल गलत हो गया होगा, है ना, क्योंकि इस प्रैक्टिकल है ही एरर्स का ना, अनसर्टेनिटीज का। तो उसमें फिर ये बताया जाता है कि भाई दोनों सही हो सकते हैं, आप वेरीफाई कर पाए या नहीं कर पाए, दोनों प्रैक्टिकल जो है वो सही हो सकते हैं, क्योंकि वो सिर्फ सजेशन होती है कि भाई ये जो रिलेशन है वो सजेस्टिव रिलेशन है, कोई लॉ नहीं होता। तो इसलिए जो है प्रूव हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। दोनों सूरतों में प्रैक्टिकल अगर आपने तरीका सही किया हुआ है तो उसके मार्क्स आपको बिल्कुल सही मिलेंगे, उसमें फिक्र की बात नहीं। जब आप लैब में आएंगे तो हम और भी बातें समझाएंगे। ठीक है। वेल, तो ये 2 क्वेश्चन होते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 में बेटा से, है ना, इसमें अब हर एक वो बार बार हम जब कराते हैं तो बताते रहते हैं इसका। जैसे बेटा इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में ये स्किल्स रिक्वायर्ड है, और ये वाली ये स्किल्स चाहिए बेटा बेटा और ये उनका जो है वो ब्रेक डाउन है मार्क्स का ना। सही है। और ये मिनिमम मार्क्स एलोकेशन, मतलब इसको डिवाइड कर दिया हिस्सों में, उनके मार्क्स है। सबसे पहले मैनिपुलेशन, मेजरमेंट एंड ऑब्जर्वेशन। इसमें बेटा आपको ये देखना पड़ता है
लिंक कैसी की है प्रैक्टिकल की ना, मुख्तलिफ चीजों की ऑप्शन लेके मेजरमेंट्स मुख्तलिफ, इसमें बेटा रेंज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वैल्यूज, किस रेंज में आपने रीडिंग्स दिए, फिर प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा एंड ऑब्जर्वेशन, तरीका है कि नहीं, खाए कि नहीं, उसके मार्क्स से बेटा। फिर ऑब्जर्वेशन की जो कैलकुलेशन आपने की है वो सही की है, एनालिसिस कंक्लूजन एंड इवैल्यूएशन के क्या वो होता है, उसकी कैसी की है, मतलब ग्राफ का बेटा ग्रेडियंट कैसे क्या निकाला, कैसे निकाला है, फिर ड्राइंग कंक्लूजन, कंक्लूजन कैसे बनाया है, उसके मार्क्स होते हैं। टोटल मार्क्स 4 है बेटा। इस तरह 17 marks will be allocated across the skills in this grade, and their allocation may vary from इसमें रीडिंग्स कम लेते हैं, सिर्फ 2 ही रीडिंग लेते हैं। सक्सेसफुल डेटा कलेक्शन के 4 मार्क्स हैं, क्वालिटी ऑफ डेटा के 1 मार्क है, फिर प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा एंड ऑब्जर्वेशन के 2 मार्क्स हैं बेटा। किस तरह आपने रीडिंग रिकॉर्ड की है, कैसे लिखी है, डेसिमल एनालिसिस कंक्लूजन के मार्क्स हैं। इसमें ड्राइंग कंक्लूजन रिलेशन जो है वो कैसे देख रहे हैं आप, suggesting improvement, उसमें एरर्स होते हैं, तो आपको प्रैक्टिकल करते हुए जो भी लिमिटेड 4 मार्क्स, उसके 4 पॉइंट्स लिखते हैं, 4 मार्क्स। इसी तरह फिर प्रैक्टिकल में जो परेशानी में के भी बेटा 4 पॉइंट्स लिखने होते हैं, 4 मार्क्स उसके भी होते हैं। 3 मार्क्स जो है वो फिर इधर उधर वो एलोकेट करता अपनी मर्जी के मुताबिक। तो ये तो जल्दी से हमने बेटा मार्क्स के बारे में, और आपको ये खुद ब खुद याद आई वुड लाइक वो कहाँ तक है। एक बात और याद रखना मेरे बच्चों, वो ये कि जब आप ओ लेवल से ए लेवल में आए हो ना बेटा, तो इसको हम बहुत आसान है, और ए लेवल उसके मुकाबले में एक बड़ा जंप है बेटा, और उसको हम कहते हैं कि इसका डिफिकल्टी लेवल ओ लेवल्स के मुकाबले में ज्यादा है, काफी ज्यादा है। डरा नहीं रहा आप। बाद बच्चे क्या करते हैं, वो ये समझते हैं कि भाई हमने ए या ए स्टार ओ लेवल में ले लिया है, तो ये तो कोई मसला ही नहीं है, इट विल बी जस्ट लाइक मैंने बेड ऑफ रोजेज है ये, केक की तरह से उसको जो है वो हम खा जाएंगे। डिफिकल्टी लेवल का अंदाजा आप ऐसे लगा लो बेटा, ए स्टार जो है वो स्कोर किया है, ए या स्टार ग्रेड लिया है बेटा,
या ए स्टार लेने के लिए आपको 3 गुना नहीं बल्कि कम से कम 4 गुना मेहनत करनी पड़ती है, कम से कम। जब आपको जो है बेटा एएस में ए या ए स्टार जो है वो मिलता है ना। और एएस अगर अच्छा होगा तो A2 अच्छा होगा, A2 उससे भी मुश्किल होता है। तो फिर उसके लिए क्या करना चाहिए बेटा कि एएस में ही जो है वो कमर बांध लेनी चाहिए, है ना, तैयार हो जाना चाहिए शुरू से। ये नहीं कि मतलब आप आखिर ओ लेवल में आखिर में भी तैयारी कर ली, चलो भाई काम बन गया, है ना, आखिरी 2 महीनों में पढ़ लिया। लेकिन एएस में बेटा ए लेवल में शुरू से तैयारी करनी पड़ती है, सीरियस होना पड़ता है। ये 2 साल आपकी जिंदगी के बेटा इतने अहम साल है ना। ये साल कहलाते हैं मेक या ब्रेक के साल। या तो 2 साल आप अपनी पढ़ाई को दे दो बेटा, बाकी चीजें जो है पबजी खेलना, मूवीज देखना, ये सब जरा यार उसको जो है साइड में रखो जरा, ठीक है ना। और आप कि अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस जो 2 साल इसमें देगी, स्ट्रगल करके गुजारोगे, सही है। तो ये बात हम पहले से बच्चों को बता देते हैं। अच्छा चलो आगे चलते हैं बेटा। बहुत ही सिंपल सी बात पूछ लेता हूँ, है ना, ये फिजिक्स क्या होती है यार। फिजिक्स पढ़ो, इतने 3 साल से तो आप फिजिक्स पढ़ ही रहे हैं, सही है। तो मोहम्मद आरिफ का मैसेज मैंने पढ़ दिया बेटा, इट्स ओके, समझ गया आपके बारे में, गुड। चलो अच्छा फिर जो है बेटा, हाँ तो 3 सालों से पढ़ लो, फिजिक्स के बारे में तो बता ही सकते हो यार, है ना। चलो शाबाश, कौन बच्चा मुझे बताएगा। चलो सादिया खान बताओ फिजिक्स क्या होती है। फिजिक्स क्या होती है भाई, किस बला का नाम है। समिता जहां। Sir, it is the study of matter and energy. काशिफ नजीर। अच्छा एक बात याद रखना बेटा, क्या ना, आपको रिस्पॉन्ड जरूर करना है। जब आपके टीचर बोलेंगे तो आपको रिस्पॉन्ड करना है माइक खोल के, आप अपनी मर्जी से खामोश नहीं रह सकते, ठीक है। तो आप जवाब दिया करें, नहीं पता कोई बात नहीं, बोल दो कोई बात नहीं सर हमें पता नहीं है, इट्स ओके, ठीक है। It is the बताओ जल्दी study शाबाश। of energy and matter. शिजा फर्रुख। बता ही नहीं रहा कोई यार, ए ग्रेड लिए हुए, ए स्टार लिए हुए मॉक में, है ना। जैनब किंदी। It is the study, it is the branch of science and in which जैनब it deals बोल with. बेटा। Assalamu यूरिया alaikum, sir. सैयद। अच्छा चलो ऐसा करो, कोई भी बोल दो जिसको आता है ना। सर फिजिक्स जो है वो नेचर की स्टडी है जो कि कोई भी मेनली मर्द मैटर और मुजाहिद या एनर्जी खातून से डील मुजाहिदा, करता है। कोई भी सर डिफाइन कर दो बोल तो फिजिक्स रही क्या हूँ। होती है। ओह माय गॉड, नॉट डिफाइनिंग, कम ऑन टेल मी व्हाट इज फिजिक्स। चलो होती होगी, हमें से सर है, बस हमें तो पढ़ना है, सही। अच्छा चलो मेरी चलो मैं आवाज बताता हूँ बेटा, ठीक है। देखो फिजिक्स जो है बेटा वो 2 तरह से डिफाइन करते हैं। हम कहते हैं कि फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ मैटर एंड एनर्जी एंड द म्यूचुअल इंटरेक्शन बिटवीन देम थ्रू फोर्सेस। भाई मैटर और एनर्जी यानी मास और एनर्जी का म्यूचुअल इंटरेक्शन है फिजिक्स एंड नथिंग एल्स, है ना। और ये इंटरेक्शन फोर्सेस के थ्रू होता है। भाई एक कार डिजाइन करनी है इतने मास की, है ना, और उसको पावर का कितनी एनर्जी वाला इंजन लगाना चाहिए, ये सब वर्कआउट मिलकर ऐसा करते हैं, सही है। अच्छा अब जो भी आप फिजिक्स में पढ़ेंगे बेटा वो मास एनर्जी का ही इंटरेक्शन होगा, सही। चलो आगे बात करते हैं बेटा। और वो इंटरेक्शन फोर्सेस के थ्रू होता है।
वो जैसे जैसे आप पढ़ते रहेंगे थ्योरी में तो वो वैसे वैसे आपको पता भी चलता रहेगा बेटा। सही, जरा मुझे बता सकते हो कि मास और एनर्जी के का एक बड़ा मशहूर रिलेशन है बेटा, वो रिलेशन कौन सा है? वो तो पता होगा ना बच्चों को, कौन सा रिलेशन है बेटा? equal to mc square. Everybody has to remain in the class till the last second, है ना, otherwise you will be marked absent. Okay, मैं इसको देखता हूँ, इसकी जो है वो पूरा सिस्टम है यहाँ पर, मॉनिटर कर रहे हैं इस क्लास को ना, कई लोग मॉनिटर कर रहे होते हैं, है ना, वेल्स कॉलेज की एडमिन में जो लोग हैं, कई लोग इसको मॉनिटर करते हैं, आपकी अटेंडेंस रजिस्टर होती है, और जो बच्चे थ्रू आउट प्रेजेंट नहीं रहते उनको एब्सेंट मार्क किया जाता है, लिहाजा आपको लास्ट मोमेंट तक जो है वो प्रेजेंट रहना है, ठीक है। चलो अच्छा, बाद बच्चों ने लिख के दिया आंसर, वो आंसर सही है बेटा, सही है। देखो मास और एनर्जी में अच्छा, आई प्रीफर कि आप जो है ना माइक खोल के आंसर करें बेटा, है ना, ऐसे चैटिंग पे आंसर करने के बजाय माइक खोल के जो है वो आंसर करें, वो ज्यादा बेहतर है बेटा। मास और एनर्जी का ये रिलेशन होता है E इक्वल mc स्क्वायर, और ये रिलेशन आइंस्टाइन्स मास एनर्जी रिलेशन कहलाता है। एल्बर्ट आइंस्टाइन, उसका नाम सुना है ना बेटा सबने, तो उसने ये रिलेशन जो है वो दिया था, सही है। अच्छा, ये बना है इससे, ये इक्वेशन बनी है इस रिलेशन से कि एनर्जी और मास एक दूसरे के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, यानी बेटा यहाँ से पता चलता है कि मास में वेरिएशन होगी तभी तो एनर्जी, तभी तो रिलेशन बना है, तभी एनर्जी में कन्वर्ट होगा वो। तो इसका मतलब ये जो बात मैं कर रहा हूँ वो मॉडर्न फिजिक्स की बात कर रहा हूँ, क्लासिकल फिजिक्स की बात नहीं कर रहा बेटा, क्योंकि क्लासिकल फिजिक्स में मास को हम कांस्टेंट ले लेते हैं, ओ लेवल में हर जगह आपने पढ़ा मास कांस्टेंट, लेकिन मॉडर्न फिजिक्स की इक्वेशन मॉडर्न फिजिक्स की है बेटा। मॉडर्न फिजिक्स में मास एक वेरिएबल क्वांटिटी है, मास प्रोसेसेस में बेटा मास कांस्टेंट नहीं रहता बल्कि गायब हो जाता है ना। तो मास एनर्जी में, एनर्जी मास में कन्वर्ट हो सकते हैं मॉडर्न फिजिक्स के मुताबिक। अच्छा, मास जो है मास प्रोसेसेस में गायब हो जाता है, वो प्रोसेसेस आपने पढ़े हुए, ओ लेवल में पढ़े, क्या उन प्रोसेस का नाम बता सकते हैं बेटा? सैयदा हुस्ने ज़ैनब, उस प्रोसेस का नाम बताओ, ओ लेवल में पढ़ा हुआ बेटा, जल्दी जल्दी बताओ यार, नहीं पता तो मना कर दो, है ना, टाइम नहीं जाया हो ना बेटा। अच्छा, ज़ैनब अशफाक, चलो एनी वन ऑफ यू, ओपन योर माइक एंड स्पीक आउट, बोलो बेटा। रेडियो एक्टिविटी के, चलो मैं बताता हूँ बेटा, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन आपने पढ़ा है। न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन में जो जिसमें एक हैवी न्यूक्लियस दो छोटे न्यूक्लियसों में ब्रेक हो जाता है बेटा, उसको न्यूक्लियर फिजन प्रोसेस कहते हैं। और फिजन चेन रिएक्शन आपने पढ़ा हुआ है बेटा, आपको पता है, आपने जो पढ़ा था उसमें यूरेनियम पर जब सिलो न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट करते हैं तो यूरेनियम, बेरियम और क्रिप्टॉन में ब्रेक होता है, 3 सरप्लस न्यूट्रॉन मिलते हैं बेटा, और ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी। उस हीट एनर्जी से आप जो है वो स्टीम जो मिलती है हमें, स्टीम से बेटा उससे स्टीम बनाते हैं, स्टीम से टरबाइन चलाते हैं, टरबाइन से बिजली पैदा की जा सकती है जिसे एटॉमिक पावर कहते हैं, है ना। तो ये प्रोसेस होता है वहाँ, उसमें बेटा जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स होते हैं उनके मास में फर्क होता है। रिएक्शन होता है यूरेनियम और न्यूट्रॉन का, है ना, बेरियम क्रिप्टॉन बनते हैं, 3 एडिशनल न्यूट्रॉन आते हैं, एनर्जी मिलती है। तो जब प्रोडक्ट्स का मास निकालते हैं ना तो वो रिएक्टेंट के मास से कम आता है। फर्ज कर लो बेटा कि रिएक्टेंट, ऐसी कर रहा हूँ कि रिएक्टेंट जो है वो 100 ग्राम है, तो प्रोडक्ट्स का मास 99.9 ग्राम आ गया, यानी 0.1 ग्राम मास गायब हो गया। वो जो मास गायब होता है ना वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है इस इक्वेशन के मुताबिक। जितना मास गायब होगा उतनी ज्यादा एनर्जी मिलेगी बेटा। फिर इस रिलेशन यानी E प्रोपोर्शनल M को जब आप इक्वेशन बनाते हैं तो इक्वल टू और कांस्टेंट लाते हैं,
है ना, और इसको हटाया, इक्वल टू कांस्टेंट लाए, कांस्टेंट की जगह आता है सी स्क्वायर, तो इक्वेशन बनती है ई इक्वल सी स्क्वायर एम, या बेटा इक्वेशन बनती है ई इक्वल एम सी स्क्वायर लिख देते हैं उसको ना, सी स्क्वायर एम के बजाय। इस इक्वेशन में सी स्क्वायर क्या है बेटा, जल्दी बताओ शाबाश, सी स्क्वायर क्या है? स्पीड ऑफ भाई लाइट। कांस्टेंट की जगह लिखा है, तो इस इक्वेशन में सी स्क्वायर कांस्टेंट की जगह लिखा है ना बेटा, ये देखो कांस्टेंट की जगह लिखा है, तो कांस्टेंट की जगह लिखा है, तो ये इस प्रोपोर्शनैलिटी का, ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इस प्रोपोर्शनैलिटी का कांस्टेंट है, इसीलिए सी स्क्वायर को कहते हैं बेटा कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। इसके अलावा जो सी है, खाली सी स्क्वायर में सी, खाली सी क्या है? खाली सी है बेटा स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट है और वैक्यूम में इट इज बुक्स में सही 3 इंटू 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड होती है स्पीड की, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। सही बेटा। अब जरा सुनो, अगर मैं आपसे बोलूं कि आप ई और एम का ग्राफ बनाओ, तो कैसे बनाओगे बेटा ई और एम का ग्राफ? हाँ भैया, दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो इनका ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा और ओरिजिन से शुरू भी होगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा और ओरिजिन से बेटा शुरू भी होगा। मैं मैसेजेस पढ़ रहा हूँ लोगों के, लेकिन बेहतर है बेटा कि आप माइक पे जवाब दें, ठीक है, मैसेजेस पे जवाब ना दें, तो ऐसे ग्राफ बनेगा। अच्छा, अगर मैं आपसे बोलूं कि इसका जो है वो ग्रेडियंट निकालो इस ग्राफ का, है ना, इस ग्राफ का ग्रेडियंट नजर तो आ रहा है कांस्टेंट है, लेकिन वो कांस्टेंट क्या है? सुनो, ग्रेडियंट कैसे निकालते हो बेटा? ग्रेडियंट निकालते हो डेल्टा चेंज इन द वैल्यू ऑफ y डिवाइडेड बाय चेंज इन द वैल्यू ऑफ x, ऐसे करते हो ना बेटा, और इसको लिखते हो y2 माइनस y1 और इसको लिखते हो बेटा x2 माइनस x1, ऐसे लिखते हो, सही है। अच्छा, यहाँ हमारे पास बेटा y एक्सिस पे क्या है? एनर्जी है, तो एनर्जी की चेंज डेल्टा ई लिखेंगे, और x एक्सिस पे क्या है? मास है, तो नीचे मास की चेंज आएगी डेल्टा एम। बेटा एनर्जी की चेंज एनर्जी के ही बराबर होती है, सही बेटा, एनर्जी की चेंज वेलोसिटी थोड़ी देगी, एनर्जी देगी, और मास की चेंज बेटा मास के ही बराबर होती है। तो इस ग्राफ का ग्रेडियंट आया ई ओवर एम, और ई ओवर एम सी स्क्वायर के बराबर होता है बेटा। क्यों? यहाँ से देख लो, ई ओवर एम किसके बराबर है? ई ओवर एम, एम को नीचे ले आओ तो ई ओवर एम हो जाएगा, वो बराबर आएगा सी स्क्वायर के। बस पता चल गया कि ई और एम ग्राफ का ग्रेडियंट सी स्क्वायर होता है, यानी ई इक्वल एम सी स्क्वायर में जो सी स्क्वायर है ना वो होता है। चलो ये बात समझ में आ गई। अगर बेटा इसके मुकाबले में ऐसे पूछ रहा हूँ, इसके मुकाबले में बेटा एक और ग्राफ बनाए वाई और एक्स, एक्सिस लेते हुए वाई और एक्स का ग्राफ बनाए, अगर वो ऐसे हो तो वाई और एक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या नहीं है? बताओ, वाई और एक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या नहीं है? No, sir. प्रोपोर्शनल है लेकिन आमना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है। तो बेटा वाई और एक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या नहीं है? सही, उमर काशिफ ने कहा कि नहीं, सही बात है भाई, नहीं है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मोहम्मद अरीब ने भी कहा नहीं है भाई, सही, गुड। हाँ, क्योंकि बेटा अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते ना तो ग्राफ को ओरिजिन से शुरू होना चाहिए था, ओरिजिन से शुरू नहीं हो रहा। अच्छा, अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है तो ये कैसे डिपेंडेंट है? इनको क्या कहते हैं? एक लफ्ज कहते हैं इनके लिए बेटा कि ये इस तरह से डिपेंडेंट है। जरा बताओ जल्दी शाबाश, किसी को पता है कि अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है तो क्या है? एक बच्चे ने लिखा प्रोपोर्शनल बट नॉट डायरेक्टली, ये लिखा है मोहम्मद अरीब ने। चलो खैर, हाँ सही है, प्रोपोर्शनल तो है। इसको कहते हैं बेटा लीनियरली डिपेंडेंट, क्योंकि ग्राफ तो लीनियर है, स्ट्रेट लाइन है, इसको कहते हैं लीनियरली डिपेंडेंट ग्राफ, है ना। तो एक्स और वाई, एक्स एंड वाई आर लीनियरली डिपेंडेंट, ये कह सकते हैं। सही, चलो ये बात भी हो गई। चलो आगे चलते हैं बच्चों। सही, यही बातें बेटा मैंने इस पेज पे ऐसे लिखी हुई है, ठीक है। तो
ठीक है बेटा। अच्छा आगे चलते हैं इसका। अच्छा ये बात हो गई, हमने इस डेफिनेशन को कवर किया। ठीक है, एक और डेफिनेशन है कि फिजिक्स के बारे में कि इट इज दी study of laws of nature and their application to non-living things. Study of laws of nature and their application to non-living things. बेटा ये laws of nature क्या होते हैं, कोई बताएगा भाई? laws of nature क्या होते हैं? आज हम ऐसी बातें करेंगे, है ना, क्योंकि ये बातें बहुत जरूरी है। सही है, तो ताकि आपको पता तो हो कि फिजिक्स होती क्या है यार, क्या पढ़ने जा रहे हैं, किस बला का नाम है। इट इज द स्टडी ऑफ लॉज ऑफ नेचर एंड देयर एप्लीकेशन टू नॉन लिविंग थिंग। देखो साइंस जो है ना बेटा, वो दो तरह की होती है। एक तो होती है फिजिकल साइंस और एक होती है बेटा बायोलॉजिकल साइंस। फिजिकल साइंस जो है वो नॉन लिविंग थिंग्स की स्टडी से रिलेटेड है, और बायोलॉजिकल साइंस में बेटा साइंस की वो ब्रांचेस आती हैं जो लिविंग थिंग्स की स्टडी से रिलेटेड है, जैसे बायोलॉजी, फिर उसकी सब ब्रांचेस बॉटनी एंड जोलॉजी, फिर जेनेटिक्स, जेनेटिक इंजीनियरिंग, माइक्रोबायोलॉजी, ये सब जो है बेटा वो क्या करती है बेटा, क्या नाम है, लिविंग थिंग्स की स्टडी से रिलेटेड है। सही, तो इसलिए बेटा हम कहते हैं कि फिजिकल के बायोलॉजिकल साइंसेज में लिविंग थिंग्स की स्टडी आती है, और फिजिकल साइंसेज में नॉन लिविंग थिंग्स की स्टडी आती है, और उसमें यानी वो साइंस की ब्रांचेज आती हैं, वो सब्जेक्ट्स आते हैं जो कि नॉन लिविंग थिंग्स की स्टडी से रिलेटेड है। लाइक फिजिक्स हमारा सब्जेक्ट है ना, इसके अलावा बेटा जो है वो मैथमेटिक्स है, स्टैटिस्टिक्स है, जियोलॉजी है, ये सब जो है बेटा फिजिकल साइंसेज में आते हैं। तो बताना था कि फिजिक्स इज वन ऑफ द फिजिकल साइंसेज, यानी नॉन लिविंग थिंग्स से रिलेटेड है। इसलिए लिखा कि इट इज द स्टडी ऑफ लॉज ऑफ नेचर एंड देयर एप्लीकेशन टू नॉन लिविंग थिंग्स। अगर नॉन लिविंग थिंग्स से रिलेटेड है तो क्या ह्यूमन बीइंग्स को जो है वो बेनिफिट करती है या नहीं? हाँ भाई करती है, बहुत बेनिफिट करती है ना ह्यूमन बीइंग्स को। इस फिजिक्स की तरक्की ही की वजह से बेटा कि हम बहुत सी लग्जरीज का जो है वो लग्जरीज को एंजॉय करते हैं, है ना। हमारी क्लास जो है वो हो रही है ऑनलाइन, मोबाइल आपके हाथ में, लैपटॉप है बेटा, तो ये सब चीजें जो है वो फिजिक्स की तरक्की ही की वजह से बनी, है ना। और इसके अलावा बेटा ये फिजिक्स की एक अहम ब्रांच इलेक्ट्रॉनिक्स, उससे रिलेटेड है सारी चीजें, लैपटॉप, मोबाइल, ये वो सब इलेक्ट्रॉनिक्स वालों का कमाल है ये। सही है, तो इसीलिए कहते हैं कि फिजिक्स जो है सारे साइंस के सब्जेक्ट्स में बहुत ही अहम तरीन सब्जेक्ट है। यानी साइंस अगर एक स्टेट है बेटा, तो उस स्टेट का किंग यानी बादशाह जो है वो फिजिक्स है। इसीलिए फिजिक्स के लिए वर्ल्ड वाइड एक कैप्शन मशहूर है, और वो कैप्शन है द किंग ऑफ ऑल साइंसेस। फिजिक्स को क्या कहते हैं बेटा? किंग ऑफ ऑल साइंस हो गई। अच्छा, ये लॉज ऑफ नेचर बाद बच्चों ने लिख के दिया, कुछ ने सही लिखा है कि लॉज ऑफ नेचर क्या है। एक्चुअली बेटा वी कम अक्रॉस लॉज ऑफ नेचर डेली बट वी डोंट नोटिस देम, है ना। सब जैसे बेटा हम कहते हैं कि सन राइजेस इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट, दिस इज वन ऑफ द लॉज ऑफ नेचर। दिस इज जस्ट अकॉर्डिंग टू केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, है ना, which is one of the laws of nature. इसी तरह बेटा if you are holding something in your hand and if you release it from some height, then what happens? It falls down definitely, है ना। क्यों बेटा वो नीचे क्यों गिरता है? सबको पता है, वो गिरता है बेटा ग्रेविटी की वजह से, है ना। जमीन की ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, जमीन की ग्रेविटेशनल फील्ड में किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी हाइट से छोड़े तो वो नीचे ही गिरता है ना। ये बेटा इट इज जस्ट अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, और न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो कि वन ऑफ द लॉज ऑफ नेचर है बेटा, उसको A2 में आप पढ़ेंगे। सही है, सेकंड चैप्टर ग्रेविटेशन का ये A2 के अंदर। अच्छा, फिर और भी लॉज ऑफ नेचर है। सपोज बेटा कि सम ऑब्जेक्ट इज लाइंग ऑन द टेबल, है ना, या सम चेयर, है ना, इज लाइंग ऑन द फ्लोर इन द room and you want to set it into motion. So if you want to set it into motion, then what are you supposed to do? Tell me,
व्हाट आर यू सपोज टू डू? साद हुसैन, क्या करेगा मेरा बच्चा? जब कुर्सी को इन मोशन लाएगा तो क्या करेगा? व्हाट यू आर सपोज टू डू? एनी वन ऑफ यू? भाई फोर्स लगाएंगे यार, और क्या करेंगे, है ना? फोर्स लगाए बगैर थोड़ा ही कुर्सी जो है मूव कर सकेंगे कि हम कुर्सी को इशारा करें भाई इधर आ जा, उंगली से इशारा करें वो आ जाएगी, ऐसा तो नहीं होता बेटा, है ना? यानी फोर्स लगाते हैं तब कहीं जाके वो मूव करती है। यानी बिहाइंड एवरी फोर्स, बिहाइंड एवरी मोशन, रादर बिहाइंड एवरी मोशन देयर इज सम फोर्स, है ना? तो इसका मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टेट को अगर चेंज करना हो तो फोर्स चाहिए होती है। दिस इज वन ऑफ द लॉज ऑफ नेचर, है ना? कौन से लॉ, किस लॉ से रिलेटेड बात कर रहा हूँ जरा बताओ बेटा, किस लॉ या किन लॉज से रिलेटेड बात कर रहा हूँ बेटा, कोई भी बता दो। हाँ बच्चों, अच्छा दूसरे सेक्शन के बच्चे जो थे ना उन्होंने काफी माइक खोल खोल के आंसर दिए, आप लोग जो है वो माइक खोल के आंसर नहीं दे रहे। सही है, बात बच्चे सही आंसर कर रहे हैं चैटिंग पे, सही है। जैसे एक बच्चे ने लिखा कि ये न्यूटन सेकंड लॉ, ये भी सही है बेटा। न्यूटन फर्स्ट लॉ भी सही है, यानी न्यूटन लॉ से रिलेटेड बात कर रहा हूं मैं। आपने पढ़ा है ना न्यूटन फर्स्ट लॉ में कि एवरी in its state of rest or of uniform motion until it is acted upon by some external unbalanced force। सही है, तो ये बात है। इसके अलावा जब किसी बॉडी पर फोर्स लगाते हैं तो उसमें उसी जानिब एक्सीलरेशन पैदा होता है ना? when unbalanced force is applied on an object then acceleration is produced in the object in the direction of force, and that acceleration is actually directly proportional to the applied force and inversely proportional to the mass of the object, है ना? तो F इक्वल एम ए की इक्वेशन आती है बेटा न्यूटन सेकंड लॉ की, पता है आपको? सही है, चलो गुड। अच्छा जी, ये कौन है? सही सही कहा आपने। अच्छा आगे बात करते हैं बेटा। देखो ये जो इक्वेशन है, और बात चेक कर लेते हैं जरा सी ना, थोड़ी सी चेकिंग करनी है आपकी ना बेटा। F इक्वल एम ए, ये न्यूटन सेकंड लॉ की जो है वो इक्वेशन है, उसमें बेटा F का मतलब क्या है, M का मतलब क्या, A का मतलब क्या है? बहुत आसान है यार, ये क्या पूछ रहे हैं, है ना भाई? M का मतलब मास है, A का मतलब एक्सीलरेशन है, F का मतलब क्या है? F का मतलब क्या है भाई? F का मतलब है फोर्स। जैनब अशफाक कह रही है भाई फोर्स है, सही बात सही है, लेकिन ये कंप्लीट आंसर नहीं है बेटा, है ना? कंप्लीट आंसर क्या होगा? फोर्स है, कौन सी फोर्स है? Resultant force. ये फोर्स है, ये फोर्स है रिजल्टेंट फोर्स। रिजल्टेंट फोर्स है बेटा, यानी रिजल्टेंट फोर्स से किसी को कहते हैं अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स। सही है। अब कोई भी रिजल्टेंट फोर्स है ना, एक से ज्यादा फोर्सेस का रिजल्टेंट होती है ना? कम से कम दो फोर्सें होंगी, उनका रिजल्टेंट होगा बेटा। सही है। तो अब मुझे ये बताओ कि ये जो फोर्स है बेटा, ये एक बैलेंस फोर्स का रिजल्ट है या अनबैलेंस फोर्सेस का रिजल्ट है? जल्दी बोलो शाबाश। बैलेंस फोर्सेस का रिजल्ट है या अनबैलेंस फोर्सेस का रिजल्ट है? Anyone can speak out by opening the mic. पता नहीं क्या खोल ही नहीं रहे माइक। अनबैलेंस्ड फोर्सेस सर। अनबैलेंस फोर्सेस का रिजल्ट है। जैनब ने कहा अनबैलेंस फोर्सेस का रिजल्ट है, बिल्कुल सही बेटा, है ना? क्योंकि बेटा अगर एक ऑब्जेक्ट है उस पर दो फोर्सेस लग रही है ना, 5 न्यूटन की इधर 5 न्यूटन की इधर, तो ये तो एक दूसरे को कैंसिल करेंगी, इक्वल एंड ऑपोजिट है, तो रिजल्टेंट फोर्स जो है वो तो जीरो बनेगी, है ना? रिजल्टेंट फोर्स को एफ आर या एफ लिखते हैं तो वो जीरो बनेगी, तो रिजल्टेंट फोर्स जीरो है। अगर रिजल्टेंट फोर्स जीरो हो जाए, यहाँ से पता चल रहा है कि फोर्स और एक्सीलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर रिजल्टेंट फोर्स जीरो हो गई तो एक्सीलरेशन पैदा नहीं होगा। इस इक्वेशन में तो एक्सीलरेशन है, तो एक्सीलरेशन पैदा हो रहा है, तो इसका मतलब ये जो रिजल्टेंट फोर्स है वो बैलेंस फोर्सेस का रिजल्ट हो ही नहीं सकती, है ना? वो अनबैलेंस फोर्सेस का रिजल्टेंट होगी। यहाँ लग रही फर्स्ट करो बेटा 7 न्यूटन,
और यहाँ लग रही है 5 न्यूटन, तो बेटा जो रिजल्टेंट फोर्स बची एफ आर या एफ, वो बची बेटा 7 माइनस 5 यानी 2 न्यूटन। और किस तरह बचेगी बेटा, राइट पे, ऑन द राइट, ये करते थे ना ओ लेवल में, ऑन दी राइट, राइट साइड पे बचेगी। सही है, तो इसका मतलब 5 और 7 न्यूटन यहाँ पे, ये दोनों अनबैलेंस फोर्सेस हैं और रिजल्टेंट फोर्स अनबैलेंस फोर्सेस का ही रिजल्ट होती है। चलो ये बात हो गई, ठीक है। चलो एक बात और पूछता हूँ तुमसे बेटा, टर्मिनल वेलोसिटी की डेफिनेशन बता दो। डेफिनेशन बतानी है, ये नहीं बताना कि टर्मिनल वेलोसिटी उस वक्त आती है कि इस वक्त आती है कि जब एयर रेजिस्टेंस वेट को बैलेंस कर देती है तो बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से गिरता है, उसको टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। एक्सप्लेन करके नहीं बताना, डेफिनेशन बतानी है। कैन यू डिफाइन माय डियर? Terminal velocity is the value of speed on which the mass of कौन the falling बताएगा? body equals the air हाँ भाई, resistance. कौन बनेगा करोड़पति? आंसर देंगे। Sir, it is the speed of the body in a free fall motion. कांस्टेंट वेलोसिटी एट ए स्पेसिफिक, नहीं बेटा ये पूरा जवाब नहीं, कांस्टेंट वेलोसिटी होती है, ये बात सही है। और सारे चैट वाले हैं, चैट कर करके आदत पड़ गई ना। बच्चे माइक खोल रहे हैं लेकिन आवाज नहीं आ रही। माइक सही है? आप सुनना जरा। हेलो बेटा, अब आवाज आ रही है? अभी ज्यादा आ रही है, कम आ रही है? Sir, we can hear you, but can you hear us? जूबिया बोल रही थी ना, बोलो बेटा। Sir, are we like audible? या यू आर ऑडिबल नाउ। We were not audible before. हाँ पहले नहीं आ रही थी आवाज। सही है, चलो खैर कोई बात नहीं, हम अपना काम कर रहे हैं। तो मुझे ये बताओ बच्चों कि हाँ टर्मिनल वेलोसिटी की डेफिनेशन स्टेट कर दो। अब आवाज आ रही है मुझे? Velocity of a body in a free fall motion. वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इन अ फ्री फॉल मोशन कह सकते हैं, लेकिन ये कहना चाहिए कि इट इज द मैक्सिमम कांस्टेंट वेलोसिटी। मैं लिखता हूँ, है ना, ये ऑथेंटिक डेफिनेशन है बेटा। अक्सर बच्चों को नहीं आती, मैं पूछ लेता हूँ तो अक्सर बच्चे नहीं बता पाते ना, कोई बात नहीं, सही है। तो ये इसकी ऑथेंटिक डेफिनेशन है कि इट इज द मैक्सिमम कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट हो जाती है ना वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी, और मैक्सिमम भी होती है क्योंकि ऑन द वे डाउन वेलोसिटी बढ़ती रहती है। और जैसे ही बेटा एयर रेजिस्टेंस वेट को बैलेंस कर देती है, वेलोसिटी जो बढ़ना रुक जाती है, कांस्टेंट हो जाती है। तो जितनी बढ़नी थी उस वक्त तक बढ़ चुकी होती है, फिर कांस्टेंट हो जाती है। तो कहते हैं मैक्सिमम कांस्टेंट वेलोसिटी, इट इज द मैक्सिमम कांस्टेंट वेलोसिटी ऑन द वे डाउन, नीचे आते हुए, ऑन द वे डाउन। और कब बेटा? इन द प्रेजेंस ऑफ एयर रेजिस्टेंस, इन द प्रेजेंस ऑफ एयर रेजिस्टेंस, ये होती है बात बेटा। ये इसकी ऑथेंटिक डेफिनेशन है। चलो एक सवाल और करते हैं बच्चों, है ना, फिर जो है वो हम आपसे इजाजत चाहेंगे, ठीक है? उसका जवाब देना है, अभी नहीं दे सको तो फिर जो है वो बाद में दे देना, ठीक है ना? कोई ऐसी बात नहीं है ना घबराने की। घबराना तो वैसे ही नहीं, इमरान खान बोलते हैं ना घबराना नहीं है,
कुछ भी हो जाए घबराना नहीं है बस, ठीक है। चलो तो नहीं घबराएंगे भाई, देख लेते हैं और अभी इमरान खान को 2 साल, सही। चलो बेटा फर्ज करो मैं वर्क डन का फार्मूला तुमसे पूछूं, तो वर्क डन का फार्मूला है W = Fs, है या नहीं? अच्छा इसी तरह बेटा टॉर्क का फार्मूला, मोमेंट ऑफ फोर्स या टॉर्क का फार्मूला है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ऐसे, सही है। अच्छा इन दोनों की मैं यूनिट निकालता हूँ, या ये याद रखना कि ये फोर्स है और ये क्या है बेटा, ये क्या है, ये इस वाले फार्मूले में ये डिस्टेंस है ना, या डिस्प्लेसमेंट, उसमें डायरेक्शन बतानी पड़ेगी ना, डायरेक्शन क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, है ना, या डिस्टेंस कवर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। इसी तरह बेटा यहाँ पर ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस से हमने पढ़ा हुआ है भाई टॉर्क के फार्मूले में। मैं यूनिट निकाल, हाँ बेटा ये दूसरा वाला फॉर्मूला किस चीज का है? ये टॉर्क का है, मोमेंट ऑफ फोर्स या टॉर्क, टॉ से डाई करते हैं, ग्रीक सिंबल होती है टॉ, उससे सिंबलाइज करते हैं, ठीक है। किसी और सिंबल से भी कर सकते हैं लेकिन ज्यादातर टॉ से करते हैं बेटा, सही है। ओके सर। वर्क का SI यूनिट निकालता हूँ तो वो फोर्स का यूनिट न्यूटन और बेटा डिस्टेंस का यूनिट मीटर। इसी तरह बेटा टॉर्क का यूनिट निकालता हूँ, फोर्स का यूनिट न्यूटन और परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो भी डिस्टेंस है तो मीटर, तो दोनों का यूनिट सेम है, न्यूटन मीटर। अच्छा वर्क या एनर्जी एक ही बात होती है, वर्क या एनर्जी जो है उसका यूनिट न्यूटन मीटर है और उसको जूल के बराबर लेते हैं, कहते हैं ना कि वर्क डन का यूनिट जूल है या एनर्जी का यूनिट जूल है, लेकिन कभी भी टॉर्क का यूनिट न्यूटन मीटर लिखते हैं, कभी जूल नहीं कहते इसको, इट इज नॉट इक्वल टू जूल। कभी सुन, है ना, लेकिन यहाँ जूल, न्यूटन मीटर को ही यहाँ जूल लिखते हैं, यहाँ नहीं लिखते। बस एक बेटा एक जो है वो फर्क वाजे रखने के लिए करते हैं ऐसा, है ना। बताओ बेटा क्या फर्क है? हाँ भाई किसी को आता है? नहीं आता तो मैं बताता हूँ, फिर क्लास खत्म करेंगे बेटा। सर क्योंकि मोमेंट में हम लोग फोर्स का टर्निंग इफेक्ट कंसिडर कर रहे होते हैं और वर्क में फोर्स मतलब फोर्स से प्रोड्यूस्ड एनर्जी कंसिडर कर, छोटा सा डिफरेंस है बेटा, एक तो सर, डिफरेंस बहुत ही याद है। टॉर्क के अंदर हम टॉर्क में परपेंडिकुलर डिस्टेंस कंसीडर करते हैं और वर्क में हम वो वाला डिस्टेंस कंसीडर करते हैं जो कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स में हो, मतलब कि द डिस्टेंस मूव इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स, वो डिस्टेंस हम कंसीडर करते हैं वर्क में, जबकि टॉर्क में हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस कंसीडर करते हैं। बिल्कुल सही बेटा। कौन बोल रही है? फातिमा जी। फातिमा बोल रही है, सही है फातिमा। देखो यहाँ फोर्स लगाई हमने, when work is said to be done when force is applied and body covers some displacement in the direction of force, यहाँ डिस्प्लेसमेंट फोर्स की डायरेक्शन में होता है और टॉर्क में बेटा डिस्प्लेसमेंट फोर्स की डायरेक्शन में नहीं होता, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स के परपेंडिकुलर होता है। जैसे एक कार्डबोर्ड है और उसको मैंने बेटा यहाँ पे पिवट कर दिया, कील लगा दी और इसके ऊपर यहाँ से मैंने फोर्स लगाई, जब यहाँ से फोर्स लगाऊंगा तो ये कार्डबोर्ड ऐसे घूम जाएगा बेटा एंटी क्लॉकवाइज, है ना। तो एक लाइन बनाता हूँ, ये लाइन डॉटेड लाइन, ये डॉटेड लाइन बेटा ऐसी लाइन है जिसके ऊपर हमारी लगाई गई फोर्स एक्ट कर रही है, इसी लाइन पे फोर्स एक्ट कर रही है ना, इसीलिए इस डॉटेड लाइन को कहते हैं लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स कहते हैं मेरे बच्चों, सही है। अच्छा अब ये जो डिस्टेंस है ना, ये वाला, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स जा रही है जिस पे फोर्स एक्ट कर रही है वो लाइन, और यहाँ 90 का एंगल बन रहा है, सो दैट इज व्हाई दिस डिस्टेंस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अच्छा ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं हो सकता ये वाला, क्योंकि 90 का एंगल नहीं बन रहा है यहाँ। हाँ ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर, ये भी डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है, ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस है क्योंकि 90 का एंगल बन रहा है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स के साथ। तो सबसे बड़ा फर्क यही है बेटा कि वर्क में जो डिस्प्लेसमेंट कवर होता है वो इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स होता है, और यहाँ जो डिस्प्लेसमेंट लेते हैं या डिस्टेंस लेते हैं बेटा वो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स के परपेंडिकुलर होता है, फोर्स की डायरेक्शन में नहीं होता। और एक और फर्क है बेटा कि वर्क जो है वो स्केलर है
और टॉर्क जो है वो वेक्टर होता है. In order to keep this difference, you know, between these two quantities, we do like this. Okay, I hope कि जो बातें मैंने बताई आपकी समझ में आई होंगी इंट्रोडक्टरी क्लास में. फिर नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह फिजिकल क्लास में हम डायरेक्ट अपना प्रैक्टिकल का काम बेटा शुरू कर देंगे. Till then, I would like to say you खुदा हाफिज. Nice meeting you बेटा. अल्लाह हाफिज. Take care. Bye bye. अल्लाह अल्लाह हाफिज. हाफिज सर. अल्लाह हाफिज बेटा. अल्लाह हाफिज. Allah Hafiz, sir.